علیکم کلاس 6۔ آج ہم نظم بیٹی کی قربانی کے اگلے شعر کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک شعر میں نے آپ کو تشریح کرائی تھی، ایک آپ کو ہوم ورک میں دیا تھا، یقیناً آپ نے ہوم ورک والا کر لیا ہوگا۔ اب یہ تیسرے شعر کی تشریح میں نے بورڈ پہ لکھا ہے شعر، آپ بھی کاپی ڈاؤن کریے اور پھر میں تشریح آپ کو کرا رہی ہوں۔ ہر شعر میں حوالہ لکھنا ضروری نہیں ہے، ایک شعر میں آپ نے حوالہ لکھ دیا بس وہی حوالہ کافی ہوگا، صحیح۔ لکھیں، شعر کاپی کریں۔ زمیں سہمی پڑی تھی، آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ شعر کاپی ڈاؤن کر لیا آپ نے، اب تشریح لکھیے۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے واقعے کو قلم بند کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لٹایا اور چھری تھام کر ان کے معصوم حلق پر ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اس منظر کو دیکھ کر زمین تک خوف زدہ ہو گئی اور آسمان بھی سکتے کی حالت میں تھا۔ زمین خوف زدہ ہو گئی اور آسمان بھی سکتے کی حالت میں تھا۔ جی اب آگے سے لکھیے۔ تو یہ منظر اس سے پہلے نہ زمین نے دیکھا تھا نہ آسمان نے دیکھا، نہ زمین نے دیکھا تھا نہ آسمان نے دیکھا کہ کوئی باپ اپنے معصوم بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران تھے۔ حیرانگی کا یہ عالم اس سے پہلے نہ زمین نے دیکھا تھا نہ آسمان نے۔ آیا بچوں سمجھ میں؟ اس طرح سے آپ کے اس شعر کی تشریح مکمل ہوئی، صحیح۔ اور اب ہم کتاب کھولیے، کتاب کے اب ہم کریں گے مختصر سوالات کے جوابات، صحیح ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، کاپی ڈاؤن کریے۔ سوال نمبر 1، حفیظ جالندھری کی یہ نظم ایک تاریخی واقعے کا منظوم بیان ہے، اس واقعے کی یاد میں مسلمان کون سی عید مناتے ہیں؟ مختصر جواب آپ نے دینا ہے، بہت آسان ہے، آپ خود دیں گے اس کا جواب، صحیح۔ تو سوال نمبر 2 ہے، اس نظم میں چہرے کے تاثرات بیان کرنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں؟ لکھیے۔ سوال نمبر 2 کا آنسر ہے، سوال نمبر 2 کا آنسر نوٹ کریے، شعر نمبر 5۔ شعر نمبر 5 میں لفظ تامل یا تذبذب، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 کا آنسر آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 کا آنسر بچوں میں نے بورڈ پہ تحریر کیا ہوا ہے، اس کو آپ لکھ لیجئے۔ اس نظم میں چہرے کے تاثرات بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ہیں تامل اور تذبذب۔ تامل اور تذبذب یہ وہ الفاظ ہیں جو چہرے کے تاثرات بیان کرنے کے لیے کہے۔ اچھا، اب سوال نمبر 3 کاپی ڈاؤن کریے۔ نظم کے کوئی سے 2 اشعار جن میں مکالمے ہیں لکھیے۔ مکالمے یعنی ڈائلاگ، تو اس میں بہت سارے ایسے اشعار ہیں جس میں جو ہیں وہ ڈائلاگ ہیں۔ دیکھیے، آپ کتاب کھولیے، پیج دیکھیے، ٹھیک ہے، جہاں پر پسر اور ٹھیک ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان گفتگو دیکھیے۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ ایک تو یہ شعر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا شعر دیکھیے، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے نام پہ بندہ پہ تعمیر حاضر ہے۔ یہ وہ اشعار ہیں جس میں مکالمات دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے دونوں شعر سن لیے، یہ دونوں شعر آپ نے کاپی کرنے ہیں سوال نمبر 3 کے آنسر میں۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4۔
इस नज़्म में बाप का नाम नहीं लिखा गया। क्या आप जानते हैं वो कौन थे? उनका नाम और उनके बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। अच्छा, अब नाम कौन, बाप कौन थे? बाप कौन थे? बाप का नाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है, बाप का नाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आपने एक मुख्तसर सा पैराग्राफ लिखना है, सही है। वो आप खुद से लिखेंगे, मुख्तलिफ किताबों की मदद ले सकते हैं आप, इस्लामियात की बुक से, किसी भी बुक से, जो भी आपको मालूम है इब्राहिम के बारे में आपने लिखना है, सही। ये इस तरीके से 4 सवाल हो गए। अच्छा, अब इस नज़्म को नसर में तब्दील करके लिखिए और अपनी मर्ज़ी का उन्वान दीजिए, ठीक है। ये सवाल नंबर 3, इस नज़्म को नसर में कैसे तब्दील करना है ये मैं आपको बताऊंगी कि इसको नसर में कैसे लिखेंगे। मैं बोर्ड पे इसकी नसर तहरीर करती हूँ और फिर हम उसका उन्वान देते हैं। अच्छा, आप नसर लिखिए। नसर की मैंने हेडिंग दे दी है बच्चों, आप नसर की हेडिंग लिखिए। बाप ने बेटे से कहा कि आज मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं खुद अपने हाथों से तुमको ज़ुबा कर रहा हूँ। बाप ने बेटे से कहा कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं खुद अपने हाथों से तुमको ज़ुबा कर रहा हूँ और अल्लाह के हुक्म पर अपने हाथों को और अल्लाह के हुक्म पर अपने हाथों को तेरे खून से रंग रहा हूँ। सादतमंद बेटा अल्लाह के इस फरमान पर झुक गया। ज़मीन आसमान इस इताअत गुज़ारी पर हैरान रह गए। अब तक अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होने की ऐसी सूरत नज़र नहीं आई थी और ना इंसान ने इससे पहले ऐसी जुर्रत दिखाई थी। ना इंसान ने अब आगे से लिखिए। दोनों अजीब बशाश थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी पर तामुल और तज़ब्ज़ुब दोनों की सूरत पर ना था। बेटे ने बाप से कहा, इस्माइल बहुत साबिर है और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए सर से लेकर पैर तक हाजिर है, मगर आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें और मेरे हाथों और पैरों में रस्सी बांध लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको मुझ पर रहम आ जाए। यहाँ तक मैंने बोर्ड पे तहरीर किया है बच्चों। अच्छा, अब बाकी जो है मैं ऐसे बोलते जा रही हूँ, ठीक है। अब समझ में तो आ गया होगा आपको नसर कैसे करनी है। हमें रदीफ काफ़ी हटा देना है, बस अपने लफ्ज़ों में लिखना है, ठीक है। हम इस नज़्म का खुलासा नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसकी नसर ही लिखेंगे। तो यहाँ तक तो मैंने लिख दिया आपको, सही। कहाँ तक कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको, यानी ये वाला शेर है, उबादा आपको सूरत पे मेरी रहम आ जाए, इसकी नसर मैंने लिखी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको सूरत पे मेरी रहम आ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि मैं तड़प कर छूट जाऊं और आपके हाथ थर्राएं। अब मैं बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बोर्ड पे लिखा, अब मैं आपको बोल रही हूँ। रदीफ काफ़ी हटाकर अब इस तरीके से आपने लिखना है अपने लफ्ज़ों में। जितना बोर्ड पे लिखा है वो तहरीर कर लेंगे और जहाँ से मैं बोल रही हूँ फिर उसको आप नोट करके लिखेंगे। तो ये वाले शेर से मुबादा आपको सूरत पे मेरी रहम आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको मेरी सूरत पर रहम आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तड़प कर छूट जाऊं और आपके हाथ थर्राएं। अच्छा, बेटे की बात सुनकर बाप ने तारीफ फरमाई और उनको रस्सी और पट्टी बांधना पसंद आया। अब दोनों हर तरह से तैयार हो गए। अब दोनों बाप बेटा हर तरह से तैयार हो गए, ठीक है। बाप ने छुरी थामी और बेटा कदमों में आकर लेट गया, ठीक है। पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा। बाप ने बेटे को पछाड़ा लिटाया और अपना घुटना उनके मासूम सीने पर रखा और छुरी को पत्थर पर रगड़कर अपना हाथ को उनके हलक पर रखा। ज़मीन सहम गई, आसमां साकिन हो गया, ठीक है, क्योंकि इससे पहले ऐसा हैरत का नज़ारा
नहीं देखा था। पितर था मुतमईन, बेटे के चेहरे पर बहाली थी। बाप मुतमईन थे और बेटे के चेहरे पर भी हशाशी बशाशी थी। और छुरी जो है हलक पर चलने ही वाली थी। छुरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हलक पर चलने वाली थी कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक क्या हुआ कि अल्लाह की रहमत जोश में आ गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक रूंगटा भी कटने नहीं पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने हाथ थामा। हज़रत किसका थामा हाथ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और कहा कि बस इम्तिहान लेना मकसद था अल्लाह ताला का, आपकी इसार और जुर्रत का। और फिर उस दिन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, यहाँ खिताब लिखा है बेटा, अब लक़ब लिखेंगे, ये लक़ब कहलाता है ज़बीउल्लाह। नज़म में थोड़ी सी लिखा है खिताब, तो शायरी में उन्होंने लिख दी, आपको लिखना है कि और उस दिन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का लक़ब ज़बीउल्लाह कहलाया गया। और फिर अल्लाह ताला ने उनके हक़ में फरमाया ज़बीउल्लाह। सही, यहाँ तक हमने इस नज़म की नसर की है। ठीक है, तो इस तरीके से नसर मुकम्मल हो गई है, आपने नसर लिख ली है। अच्छा, अब मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। ठीक है, इससे पहले कोई होमवर्क दिया है मैंने आपको? ठीक है, एक शेर शायद तशरीह दी है मैंने आपको करने के लिए ना, आसान से शेर तशरीह बताई थी आपको, वो तशरीह करेंगे। और फिर इस नज़म में बाप का नाम नहीं लिखा, ये वाला आपने करना था। नसर हमने कर ली, अब ये बाकी काम कवायद का है, तो इंशाल्लाह ताला कवायद कॉपी पे किया जाएगा। अब अच्छा हाँ बच्चों, एक बात और कहनी है, कॉपियाँ आ गई हैं। ठीक है, बार बार मैं ये कह रही हूँ, इस वाले नज़म का सारा काम है, 3rd चैप्टर का सारा काम कॉपी पर करेंगे आप, न्यू कॉपी पर। उर्दू कवायद की भी, अदब की, दोनों लेंगे। कवायद की कॉपी पर कवायद का काम करेंगे और अदब की कॉपी पर अदब का काम करेंगे। तो जो पिछला काम था, जो आपने किसी रफ पे किया था, किसी नोटबुक पे किया था, वो सारा आप इस न्यू कॉपी पर स्टिक करेंगे। ठीक है, और नया काम नज़म बेटे की कुर्बानी का सारा काम आप नई कॉपी पे करेंगे, जो कि आपको स्कूल से मिलनी है। स्कूल से परचेज़ कर लीजिए, ख़रीद लीजिए, क्योंकि हम फिर एक दिन अनाउंस करेंगे कॉपी चेकिंग के लिए। ठीक है, मैम आपको एक दिन अनाउंस कर देंगी कि कॉपियाँ चेक होंगी, फिर उस दिन आप लोग अपनी कॉपियाँ अपने पेरेंट्स के हाथों सबमिट कराइएगा और फिर हम कॉपीज़ चेक करेंगे। तो इससे पहले, बिफोर हो सकता है इससे पहले ही ये काम हो जाए, इस वीक में हो जाए, तो आपने बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी है। सारा काम कंप्लीट कर मुझे कॉपी आपने कोई एक दिन में बता दूंगी, उस दिन आपने सबमिट करानी है। अच्छा बच्चों, अब इजाज़त दीजिए।